So we have two topics in this chapter. One is the arithmetic progression, another is geometric progression. Arithmetic progression you have also done in 10th standard. Right? Arithmetic progression. What is arithmetic progression? क्या होता है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? पता है ना सब क्या होता है बच्चे? If we let's say we have this series, is it clear? This is the arithmetic progression. Am I audible बच्चों? अच्छा आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो ना बच्चे? तो सबसे पहला फार्मूला रहता है बेटा nth टर्म ऑफ AP. What is the sum of n terms of AP? Right? And what is the arithmetic mean between two numbers? What is the arithmetic mean between two numbers? A and B. हाँ जी बच्चे क्या होता है ये? What is arithmetic mean? Right? Yes or no? ठीक है. तो any doubts बेटा किसी टॉपिक में आपको पर्टिकुलर डाउट्स हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन में तो प्लीज टेल मी, अदरवाइज आई टेक सम प्रॉब्लम ऑन दिस. ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है बेटा? यस हाँ जी स्टूडेंट्स. चलिए तो हम ना थोड़े से अर्थमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स से if you have to insert an arithmetic means between A and B. बेटा अगर हमें दो नंबर है A और B, उसके बीच में n arithmetic means insert करने हैं. Right? How to do this? Let's say we have two number A and B, and we have to put an arithmetic mean between these two numbers. Right, जी? Yes? Yes, बच्चों? So how to do this? Now, जब आप ये सारे arithmetic mean introduce कर रहे हैं, तो then also it becomes an AP. Right? So what is the meaning of this? What will be A1? A1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? A plus T. A2 will be equal to A plus 2D, and this way An will be equal to A plus and D. Is it clear or not? Is it clear? Yes. Now can we write B is equal to A plus n plus 1 into D? ये पार्ट समझ में आया बेटा? B is equal to A plus n plus 1 into D. राइट? ये n plus 1 कैसे आया बेटा? टोटल टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे जी? व्हाट इज द टोटल टर्म्स? n हमने अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए हैं, A और B दो टर्म्स वो हो गई, तो टोटल टर्म्स आर n plus 1, सॉरी n plus 2. टोटल टर्म्स हमारे पास हो गई n plus 2. नाउ इफ द टोटल टर्म्स आर n plus 2, लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1. Now n is now n plus 2. So n plus 2 minus 1 will be n plus 1. So this is the formula for B. यहाँ पे कोई डाउट बच्चों? Anything not clear in this? तो यहाँ से बेटा हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं. D की वैल्यू क्या आएगी?
b माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगी जी, तो सिंप्लीफाई करेंगे आप, ए को आप लेफ्ट में ले आए, b माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां से बेटा इस d की वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे। सो व्हाट विल बी a1 will be equal to a plus b minus a upon n plus 1. What will be a2? A plus 2 into, is it clear? a3 and an will be equal to a plus n into b minus a upon, right बच्चों? Is it clear? Is this clear? अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं बेटा एक, insert number between 3 and 24, ठीक है, right? That such that the resulting sequence is an AP. Resulting sequence is an AP. तो बेटा हमें 3 और 24 के बीच में नंबर इंट्रोड्यूस करने हैं जिससे कि सीक्वेंस जो है वो एक एपी बन जाए। हाउ टू डू दिस? नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस 6 नंबर्स। इस नंबर इंट्रोड्यूस करने हैं 3 एंड 24 के बीच। इज इट क्लियर जी? नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, और n कितना हो गया बेटा? व्हाट इज n? कितने नंबर इंट्रोड्यूस करने हैं? 6, तो n will be 6. So now can we find out the common difference? The formula for common difference is b minus a upon n plus 1. So what is b? 24 minus 3 upon 6 plus 1. So this comes out to be 21 upon 7. That is 3. तो आपके पास कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। नाउ व्हाट विल बी द नंबर्स? और यहाँ पे 3 है, इंटरेस्टिंग होगा, 3 है, राइट? इज दिस क्लियर? तो आपके पास a1 will be, what will be a1? A1 is a plus d. So 3 plus 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21. So these will be the numbers which you can introduce between 3 and 24 so that the resulting sequence is an AP. Is this clear? ये समझ में आया बच्चों? Any doubt? Any doubt बेटा? चलिए और क्वेश्चन करते हैं जी। इसी के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो बार बार पेपर में आता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज if a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the am between a and b, a and b, find value of n. So this is the question.
if a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the am between a and b, right? So students, अगर आपके पास दो नंबर a और b हैं, right? तो दोनों नंबर के बीच में am क्या हो जाता है जी? What is the am between a and b? A plus b by 2. Yes or no? Am I right or not? Is this clear? The am between two numbers a and b is a plus b by 2. And here am is given this. तो इन दोनों को इक्वल कर दें जी. So a plus b by 2 is equal to an plus यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट जी? एनी डाउट जी? तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं जी. is equal to 2 times यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ विल सॉल्व इट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे. a को मल्टीप्लाई किया a n माइनस 1 से, व्हाट इट विल बिकम? देखिए यहाँ पे पावर a की 1 है, b की भी 1 है. 1 प्लस n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इन b रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम. एनी डाउट बच्चों? यहां तक हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली. नाउ a मल्टीप्लाइड बाय a n माइनस 1, दिस विल बिकम an. This will remain as it is. This will also remain as it is. Plus यहाँ पे n minus b raised to power n is equal to any doubt बच्चों? नेक्स्ट आगे देखिए क्या होगा. an और bn, take these two terms on that side, right? Is this clear? Take, और what you can do, चलिए एक बार हम ले जाते हैं इनको जी. तो ये क्या बचा यहाँ से? It's equal to twice of a raised to power n plus twice of b raised to power n minus. Any doubt? इसको सिंप्लीफाई किया जी. तो यहाँ पे हमारे पास बच गया बच्चों a raised to power n plus raised to power n. Is it clear? So we are left with this term. अब यहाँ से हमें बच्चों n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. How to find out the value of n? What you can do? Take this term on this side and ये b raised to power n को आप लेफ्ट पे ले आओ, राइट? सो अब आपके पास क्या बन जाएगा? a इंटू b raised to power n minus 1 minus bn and right side will be an minus a raised to power n minus 1 into b, राइट जी? तो हमने bn को लेफ्ट पे ले आए और an को राइट पे ले गए. नाउ व्हाट विल डू फ्रॉम द लेफ्ट साइड? व्हाट कैन बी द कॉमन बच्चों? यहाँ पे कॉमन क्या आएगा दो इस टर्म में? व्हाट विल बी द कॉमन लार्जेस्ट फैक्टर? कैन वी टेक b raised to power n minus 1 कॉमन? So we will be left a minus b. Is this step clear?
Is it that clear or not? Similarly, on right hand side, we can take common a raised to power n minus 1. Any doubt? ये टर्म दोनों तरफ से कैंसल हो जाएगी जी. And what we can write? A raised to power n minus 1 equal to b raised to power n minus 1. And further, we can write, any doubt till now? A raised to power n minus 1 divided by b raised to power n minus 1 equal to 1. Further, we can write a upon b raised to power n minus 1, and 1 can be written as a upon b raised to power 0. Anything to the power 0 is 1. So now bases are equal, so we can equate the power. So the value of n comes out to be 1. Is clear बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, काफी स्कूलों के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, राइट? तो यू शुड नो दिस क्वेश्चन. बच्चों, हाँ जी स्टूडेंट्स, डन. I am not getting any response. Everything is clear in this question or not? Yes, sir. Right. Any doubt you people have in any question, please let me know. आप लोगों को कोई डाउट बेटा? राइट, आपको सब आता है. ओके, वेरी गुड. चलिए फिर एक क्वेश्चन करके दिखाइए जी. If the sum of n terms of an AP is, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, right? 3n square plus 5n, and its mth term is, and its mth term is 164. Find the value of m. Find the value of m. Please do this, students. करके दिखाइए जरा बच्चों ये क्वेश्चन. Front bench students, please try this question. All of you, please do this question. Very simple question. You have been given the sum of n terms of an AP, and the mth term is given 164. Find the value of m.
हाँ जी बच्चों, हो गया। यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा, सुनिए जरा, मेरे से पूछ लो बेटा, नो डिस्कशन। देखिए सिंपल सी चीज है बेटा, आपको एस एन गिवन है, यस, एस एन इज गिवन टू यू, कैन यू फाइंड द फर्स्ट टर्म? बच्चे एन को वन पुट कर दो, एन को वन पुट करेंगे यू विल गेट एस वन। एस वन किसके इक्वल है, सम ऑफ वन टर्म, तो आपको फर्स्ट टर्म आ जाएगी, राइट, यस और नो? देन पुट एस इक्वल टू टू, जब आप एस टू पुट कर रहे हैं तो दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, यस। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी, यू गॉट फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, देन यू कैन कैलकुलेट द डी। आपके पास फर्स्ट टर्म डी आ गई, तो ये एम एक्स टर्म गिवन है, एम एक्स टर्म किसके इक्वल हो जाएगी जी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। एम की वैल्यू पुट कर दो, ए की पुट कर दो, डी की पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम। प्लीज डू इट बच्चों। फर्स्ट पुट एन एज वन, यू विल गेट द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब ए वन। When you will put the n as 2, you will get the sum of first term and second term, right? तो वहां से आपके पास second term आ जाएगी बेटा, so then first term, second term, then you can calculate the d. Once you got these three terms, put here a and d. Please do it बच्चों। Please बेटा, last bencher not doing anything। हो गया बच्चों? a1 कितना आ गया बेटा? What is a1? Yes, tell me। Hello, beta, why you are not responding? What is A1? A1 8 आ गया बेटा, n को 1 पुट किया। What is S2? S2 कितना आ रहा है? 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 plus 10, 22 आ गया। What will be A2? A2 will be equal to 22 minus A1. Yes. So therefore A2 14 आ गया बेटा, तो D will be equal to A2 minus A1, that is 14 minus 8, 6। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो बेटा यहाँ पे, आपके पास AM इक्वल टू A प्लस M माइनस 1 इंटू D।
AM is given 164. A comes out to be 8 plus m minus 1 into 6. तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. 164 minus 8 equal to m minus 1 into 6. 156 over 6 equal to m minus 1, right? M minus 1 equal to 26 and m equal to 20. So therefore 164 is 27th term. Any doubt बच्चों? This is clear? Any doubt? Any doubt बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा. चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं बेटा. इसमें हम डूइंग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन. लिखिए जरा क्वेश्चन लिखिए बेटा. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. The man saved rupees 66,000 in 20 years. The man saved rupees 66,000 in 20 years. In each successive succeeding year, each succeeding year after the first year, he saved rupees 200 more than what he saved in previous year. How much did he save in the first year? How much did he just read this question and please do it, Bacho. A man saved rupees 66,000 in 20 years. In each succeeding year after the first year, he saved rupees 200 more than what he saved in the previous year. How much did he save in the first year? Please do this question, Bacho. हर साल वो इंक्रीज कर रहा है बेटा 200 रुपीज से, राइट? So you have to find out how much he saved in the first year.
हाँ जी बच्चों, हो रहा है क्वेश्चन? यस और नो? एनीबॉडी डन? देखिए, वट एवर यू हैव टू फाइंड, टेक दैट एज एक्स, राइट? एनीवन कंप्लीटेड? अभी तक किसी का हुआ नहीं बेटा? बच्चे, 66,000 को हम क्या लेंगे? व्हाट इट इज? व्हाट इज दिस 66,000? कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें बेटा हम क्वेश्चन में? लुक हियर बच्चे, let x is the amount he saved in the first year. No talking, no talking, no talking. First front year, front बैच स्टूडेंट्स। बेटा डाउट है तो मुझसे पूछो, और कुछ बताना है तो मुझे बता दो, मैं पूछ रहा हूँ इतने क्वेश्चन। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। चलिए बताइए बेटा, आप जो लेफ्ट साइड स्टूडेंट है ना फ्रंट बेंच पे, प्लीज दैट्स स्पेक्स वन, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। क्या किया बेटा अभी तक? यस, माइक के पास आके बताइए जरा। Yes, sir. क्या किया बेटा अभी तक? Something. अभी नहीं किया? नहीं, आज भी नहीं किया क्वेश्चन? वेरी बैड बेटा यार, इतना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। एनीवन हु हैज डन प्लीज रेज योर हैंड। नोबडी हैज डन द क्वेश्चन। किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया क्वेश्चन जी? एनीवन, एनी गर्ल स्टूडेंट, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन। देखिए बेटा, जिसने नहीं किया तो कोई देखिए जरा इधर। लेट द फर्स्ट ईयर सेव्ड रुपीज एक्स, व्हाट विल बी द अमाउंट नेक्स्ट ईयर? एक्स प्लस 200 नेक्स्ट ईयर, एंड सो ऑन। यस, no talking. When I am explaining, you doesn't listen to me. तो यहाँ पे बच्चों ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, एंड कॉमन डिफरेंस विल बी ₹200. दिस विल बी योर एसएन, सम ऑफ द अमाउंट सेव्ड इन 20 years. So now what we'll do, amount saved in 20 years is 66,000. A will be X, B is 200, and N is 20. So apply the formula for sum S20 equal to 20 by 2 into 2A plus 20 minus 1 into D. Solve कर लो जी। 66,000 is equal to 10 into 2x plus 3,800, right? तो फर्दर सॉल्व किया बच्चों, 66,000 डिवाइड बाय 10 is equal to 2x plus 3,800. जीरो से जीरो कैंसल, 600 minus 3,800 is equal to 2x, and this will be
2800, right? And x की वैल्यू कितनी आ गई? 1400 rupees he has saved in the first year, right बच्चों? Any doubt in this question? Is this question clear or not? बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखिए बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखी हुई थी कि पर्सन सेव्ड ₹66,000 in 20 years. Every year he increased his saving by ₹200. हमने क्या किया? We assume that first year he has saved ₹X. Second year कितना हो जाएगा? X plus 200. And this way he is increasing every year. Total year was 20. So he continue this saving for 20 years, right? तो 20 साल तक वो सेव करता रहा, तो 20 years क्या हो गया बेटा आपका? n नंबर ऑफ टर्म्स. ए क्या हो गया आपका? x. कॉमन डिफरेंस वाज 200 एंड s20 वाज 66,000. तो ये सारी वैल्यूज हमने फार्मूला में पुट की और सिंप्लीफाई किया, तो वी गॉट द रिजल्ट x, that is amount saved in the first year as 1400 rupees. Any doubt बच्चों? Any doubt? चलिए आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट. थैंक्स सर फॉर योर कॉपरेशन.